Hello students, how are you? Perhaps you may be fine. Again, we discussed a concept depending upon the coulombs regarding electrochemistry. In electrochemistry, various concepts are available from which so many variety of questions will come in different entrance exam, board exam, etc. etc. बच्चों के कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, coulombs or Faraday, and how this charge in coulomb or Faraday used in various chemical reaction during electrolysis. Depending upon that concept, many questions will come in various entrance exam. That is, in last year में एक question also आया था. Depending upon that, what is the question? Now the question is, how many Faraday used in the conversion of 12.3 gram of nitrobenzene. 12.3 gram of nitrobenzene into aniline. Clear? How many Faraday, or it may be how many coulombs used in the conversion of what? 12.3 gram of nitrobenzene into aniline. Choices, whatever may be the choices. Generally, the questions not depending upon the what are the choice, but our answer must be present within the choice. After calculation, our answer give the choice. What is the choice of the answer? Clear, बच्चों? Then next thing is, what is the formula for nitrobenzene? बच्चों, what is the formula for nitrobenzene? नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H5NO2. C6H5NO2. Clear? Then what is the formula for aniline? This is very good question, बच्चों. What is the formula for aniline? NH2. So this is the formula for nitrobenzene and this is the formula for aniline. So after knowing the formula for nitrobenzene and aniline, then what happens? फिर इसका बाद क्या करेंगे ना? फिर इसका बाद एक कंसेप्ट नोट कर लो. इसका बाद क्या करेंगे? कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. सबको तो याद होगा हाउ यू कैलकुलेट. देखो, वेरियस कंसेप्ट, various mixture of a concept included in this question. Be ready for that. Now you calculate what is the oxidation number of a nitrogen in nitrobenzene. तो कैसा होगा ना? Here the oxidation number of nitrobenzene. If you face any difficulty by taking the phenyl group, देखिए कंसेप्ट है क्या ना? NO2 माइनस. क्या होगा? NO2 माइनस. फिनाइल को छोड़ दो, ले जाओ NO2
माइनस। तो NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? NO2 माइनस में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे? लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू x। ये तो आपको सब मालूम होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 2 ऑक्सीजन है -4, then x -4 is equal to -1, then x is equal to +3। क्लियर? तो इन नाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +3 हो गया। If any bulky group is present, leave this bulky group, take the next part, then calculate oxidation number, which is very easy to all of you। Clear? Then फिर इसके बाद क्या करेंगे? Again you calculate the oxidation number of same atom in aniline। तो aniline में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? बच्चों एक बात है, इसी में क्या है? NO2, इसी में क्या है? NH2। तो कन्वर्सन ऑफ NO2 into NH2 आ गया ऑर्गेनिक, फिजिकल में ऑर्गेनिक। तो इन द कन्वर्सन ऑफ NO2 into NH2 the process is known as reduction, yes or no? Removal of oxygen and addition of hydrogen, this is known as reduction। रिडक्शन का मतलब क्या है? डिक्रीज। तो डिक्रीज में क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो क्या था ऑक्सीडेशन नंबर? +3। बच्चे का क्वेश्चन है, बोलो व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन और एनी एलिमेंट? याद है ना? मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन, वेरी गुड ट्रिक्स, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। नोट कर लो, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ग्रुप नंबर -8। तो बच्चों नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? 5, जिसको मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या बोलते हैं? 15। मेंडेलिव में क्या बोलते हैं? 5 ग्रुप, 5VA। तो मीन का क्या हो गया? ग्रुप नंबर 5। 5 - 8 इज इक्वल टू -3 हो गया। तो रिडक्शन मतलब कम होगा, कम होगा मतलब कितना होगा? -3। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। तो इस रिएक्शन में इन द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर का नाइट्रोजन का +3 से -3 हो गया। अच्छा बच्चों, +3 से -3 क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन द कन्वर्शन ऑफ +3 to -3, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड, by how many electrons added during the reaction of nitrobenzene to aniline? How many electron? Obviously +6 electron, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ना? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। If the charge of 1 electron is equal to 1.602 into 10⁻⁻19 coulomb, then what is the charge in 1 mole of electron? ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ना? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, 6.022 10⁻23 into 1.602 10⁻⁻19 कूलम। कुल मिला कितना हो गया? 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद
एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 96487 कूलम, एग्जैक्ट वैल्यू जो एनसीईआरटी में है 96487 कूलम। इसका होल नंबर कितना हो गया 96500 कूलम। तो 96500 कूलम, तो ये तो सबको या मालूम होगा। तो 96500 कूलम दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। 96500 कूलम दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। If 96500 coulomb is equal to 1 Faraday, that means 1 Faraday में how many mole of electron? 1 mole of electron. 1 Faraday और 96500 में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.022 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6.022 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 96500 कूलम और 1 फैराडे। हो गया बच्चों। चलिए इस रिएक्शन में कितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 फैराडे हो गया बच्चों 6 फैराडे। क्लियर? अच्छा, तो 6 फैराडे हाउ मेनी कूलम ना 6 into 96500 कूलम, 6 into 96500 कूलम। फिर इसके बाद क्या होगा ना आवर क्वेश्चन बेस्ड ऑन 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो अब क्या करेंगे नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो नाउ यू कैलकुलेट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन। बच्चों इधर क्या है 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ट्रिक्स, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा कंसेप्ट 123। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 123, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज हाउ मच 123। अच्छा, if molecular mass of a nitrogen is 123 gram, that is equal to how many mole? 1 mole. That means 123 gram of a nitrobenzene or 1 mole of nitrobenzene when converted to aniline, how many mole of electron involved? 6 mole of electron involved, that is 6 Faraday or 6 into 96500 coulomb. That means 123 gram of a nitrobenzene when reduced to aniline, then how many mole of electron involved? 6 mole of electron. How many Faraday? 6 Faraday. How many coulomb? 6 into 96500 coulomb. 6 into 96500 coulomb. Clear? If you 6 into 96, then 12.3 gram nitrobenzene when reduced, then how many coulomb or how many Faraday electron involved? The 6 into 96500 divided by 123 into 12.3. Oh. Then you multiply, divide, the result give the answer that present in our choice, either 1 or 2 or 3 or 4. हो गया। तो in this concept you must calculate oxidation number of both in reactant and product, then calculate difference, then difference of electron again multiply with charge either in Faraday or in Coulomb, then apply your unitary method to solve the questions. अच्छा बच्चों हो गया। If the question is like this, क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला तो याद होगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट और व्हाट इज द
फॉर्मूला ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या है? Cr2O7 2-. When this Cr2O7 2- converted to chromium 3+, then how many charge in coulomb is used? How many charge in coulomb is used? In this type of a question, you balanced the equation by which method? याद करो, which method? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 11th में है रिडक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? कैन यू बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड? याद है या नहीं? तो जब आज नहीं तो अभी इसका कंसेप्ट थोड़ा देख लो। अच्छा, हियर हाउ मेनी क्रोमियम? 2 क्रोमियम। इन राइट हैंड में हाउ मेनी क्रोमियम? 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया। हियर हाउ मेनी ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन। इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा? बाय द हेल्प ऑफ वाटर एंड H+। तो कैसे करेंगे? तो इन लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 7 ऑक्सीजन। इन राइट हैंड साइड नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन ऐड 7 वाटर। आफ्टर एडिंग 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फिर इसके बाद क्या करेंगे ना? ऐड डबल नंबर ऑफ H+ इन लेफ्ट हैंड साइड 14 H+। हो गया, बैलेंस हो गया। कितना इजी में बैलेंस हो गया। अच्छा देख, अभी देखो तो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। तो अभी एटॉमिकली बोथ द साइड्स आर बैलेंस्ड। देन बैलेंस यूजिंग चार्ज। चार्ज कैसे बैलेंस होगा? बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन। देखो, अच्छा इसी में चार्ज क्या है? -2। हियर चार्ज 14+, तो 14+ 2-, चार्ज कितना हो गया? 12+। राइट हैंड में क्रोमियम 3+, 2 क्रोमियम 6+, तो उधर क्या होगा? 12+, इधर हो गया 6+, तो डिफरेंस कितना है? 6। तो दैट मीन्स हियर -6 इलेक्ट्रॉन, तो +6 था, -6 इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 12। इधर भी 12। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यूज्ड? 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 into 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 6 फैराडे। तो ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ dichromate ion to chromium 3+ in acidic medium, how many mole of electron used? 6 mole of electron. How many Faraday used? 6 Faraday. How many coulomb? 6 into 96500 coulomb. और एक concept, if the question is how many charge in coulomb involved in the conversion of 1 mole of hydrogen peroxide? 1 mole of hydrogen peroxide to O2। तो कैसे होगा? In O2 what the charge of oxygen? 0, क्योंकि in elementary condition the charge of oxygen or charge of not only oxygen but any atom is equal to 0। तो इधर हो गया 0। देखो बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
here O2 2 minus, O2 2 minus, तो here 2 minus 2 0, डिफरेंस कितना 2, तो here 2 moles, here 2 moles, 2 moles 2 Faraday, 2 into 96500 coulomb. So in this concept, first you balance, then calculate oxidation number in both sides, reactant as well as product. So after calculating the oxidation number of the particular atom in reactant as well as product side, then calculate what is the difference in oxidation number. This difference multiplied by 1 Faraday or 1 Faraday is equal to 96500 coulomb, multiply it, get the answer. Clear? This concept clear? Another questions to all of you. Very good questions. Maybe expected questions for the upcoming exam, either NEET or JEE Main or JEE Advanced. Permanganate ion. Permanganate ion. Formula क्या है? MnO4 minus. Then MnO4 minus इसका 3 मीडियम में रिएक्शन होगा. एक है एसिडिक मीडियम, दूसरा है बेसिक मीडियम, तीसरा है न्यूट्रल मीडियम. एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम. तो बच्चों एसिडिक मीडियम में क्या होगा ना, एसिडिक मीडियम में होगा Mn2+. बेसिक मीडियम में क्या होगा, इसका नाम क्या है बच्चों, परमांगानेट आयन. परमांगानेट आयन. तो परमांगानेट आयन इन बेसिक मीडियम गिव व्हाट, याद करो, गिव व्हाट, मैंगानेट आयन. फॉर्मूला क्या होगा, MnO4 2 माइनस, डबल माइनस. न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, MnO2. वेरी गुड कॉन्सेप्ट, याद कर लो. तो परमांगानेट आयन इन एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस Mn2+, बेसिक मीडियम MnO4 माइनस, इन न्यूट्रल मीडियम MnO2. देन नेक्स्ट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. In MnO4 minus, oxidation number of manganese is +7. In Mn, this is +2. The +7 +2 difference क्या हो गया, 5. Then क्या होगा, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 फैराडे और 5 into 96500 कूलम्ब हो गया. +7 in MnO4 minus, double minus. In this is known as manganate ion. In manganate ion, what is the oxidation number of manganese? +6. तो इधर उधर है +7, इधर है +6. डिफरेंस कितना हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is equal to 1 फैराडे, that is equal to 96500 coulomb. In MnO2, what is the oxidation of manganese? +4. इधर है +7 +4, डिफरेंस हो गया 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 3 moles of electron is equal to 3 Faraday is equal to 3 into 96500 कूलम्ब. बच्चे लोग हो गया. इस कंसेप्ट के साथ आज का क्लास खत्म हो गया. बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी इन द नेक्स्ट.